for But you. I will miss you there. Thank you very much. You can come back soon. Yeah, I'll come. मेरे को सुनने में ये आया था कि यहाँ से दुबई और भी गल्फ कंट्रीज़ के लिए फेरीज जाती हैं. Go to jetty and then you sit in the ship, in the boat, and go to Cashmailan. Okay. Cashmailan really amazing and wonderful, really very nice. तो उन्होंने कहा कि लास्ट 2 साल से हमारा हॉस्टल बंद ही पड़ा हुआ है क्योंकि लास्ट 2 साल से कोई केश में कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है. बाय बाय. Thank you. Have a nice trip. I will see you tomorrow. See you tomorrow. बाय बाय. कि यहाँ पे कुछ हॉन्टेड प्लेस है कि यहाँ पे भूत होते हैं. And I will come to India in the March. March. Yes, she wants to come. She wants to come to India for the color festival, Yeah. right? For the Holi. Holi के लिए she'll be coming to Yes, India. see you You're there. most welcome. Thank You're most you very welcome. much. ओके सो गाइस, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. मैं जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं हूँ इस समय बंदर अब्बास में. लास्ट 2 वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैं कर रहा था काउच सर्फिंग एक लोकल होस्ट के साथ. और आज का जो मेरा प्लान है वो है यहाँ के ब्यूटीफुल आइलैंड एक्सप्लोर करने का. गल्फ़ ऑफ ओमान में सिचुएटेड, पर्शियन गल्फ़ में काफ़ी खूबसूरत आइलैंड्स हैं. तो बेसिकली 3 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, और भी एक तो छोटे मोटे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है क्योंकि मेरा जो 30 दिन का वीज़ा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. ऑलमोस्ट अभी मेरे को 25 दिन पूरे हो चुके हैं. मेरे पास सिर्फ 5 या 6 दिन ही और बचे हुए हैं, जिसके बाद मुझे इस कंट्री से एग्ज़िट करना पड़ेगा. दो इस कंट्री का आपने वीज़ा एक्सटेंड कराना हो तो उसका प्रोसेस भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ टूर शुभा ही आया हुआ, तो उन्होंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाया हुआ है. वो शायद थोड़ा और टाइम रुकेंगे, तो उसका कोई ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है. आप उनके वीडियो में देख सकते हो टूर शुभा के. लेकिन मेरा प्लान है अभी यहाँ से नेक्स्ट कंट्री मूव करने का लगभग 1 हफ्ते बाद. और बात करें अब इस जगह की, तो मैं इन आइलैंड्स पे जाने वाला हूँ. देखता हूँ, मैं 1 या 2 दिन का टाइम है मेरे पास, उतने में जितने आइलैंड्स एक्सप्लोर कर पाया वो करूँगा, आपको दिखाऊँगा और ख़ुद भी उसके मज़े लूँगा. बाकी अभी मैं हूँ बंदर अब्बास में. यहाँ से मुझे लेनी है फेरी, लेकिन अभी ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है. ऑनलाइन भी इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपनी होस्ट तारावत से ज़रा पूछता हूँ, इंक्वायरी निकालता हूँ कि भाई कैसे पहुँचूँ वहाँ पे, और वहाँ पे क्या क्या है घूमने लायक. So now I have to go to Cashmailan. Yeah. This is a nice This plan, is a really nice nice. place. Okay, so as I know, you used to live in Cashmailan, yes? Yeah. Okay, so now how do we go from here to Cashmailan? From here, you should Yeah. go to jetty at the first and sit Where- on the boat. Where to take the jetty? It's in front of the malls. It's in the city center, you Okay, know. so from You here I can take a snap. Yes, go you to should the- take a taxi or take a snap and go to jetty, and then you sit in the ship, in the boat, and go to Cashmailan. Okay. Cashmailan really amazing and wonderful, really very nice place. And also my parents live there. Okay. My family is there. Okay. If you need help, maybe Okay, I I can will. come Yeah. to that. And what all places can you suggest in Cashmailan? What can I see there? Many places have, you know, the Cashmailan is really virgin. And have a virgin nature. This is really nice. Have a mountains, have a really nice, beautiful beach. Okay. And Hangam Island, it's really beautiful. Have a silver island, silver Okay. sands Okay. with the dolphins, turtles, and Star Valleys. Star Valley, Yeah, Chaku Caves. Yeah. And many places. Many Every places. place is really beautiful. I really. love it, yeah. Yes. You can take a beautiful video, Yeah. take a beautiful picture. For But you. I will miss you there. Thank you very much. You can come back soon. Yeah, I'll come tomorrow. And I will come to India in the March. In March. Yes, she wants For to come. color. She wants to come to India for the color festival, Yes. right? For the Holi. Holi के लिए she'll be coming to Yes, India. see you You're there. most welcome. You're Thank most you very welcome. much. टैक्सी बुक कर ली है, स्नैप टैक्सी जाने के लिए. यहाँ से मैं पहले जाऊँगा पोर्ट, और पोर्ट से मैं एक फेरी लूँगा, एक पब्लिक फेरी लूँगा, जिससे मैं पहुँचूँगा केश आइलैंड पे. वहाँ से फिर अगर आगे और आइलैंड जाना हो तो फिर से फेरी लेनी पड़ती है, लेकिन टाइमिंग्स होती हैं. बाकी जितना मेरे को भी पता लगा है, जो बंदर अब्बास से केश में जाने की फेरी है, क्योंकि केश में एक बड़ा आइलैंड है, बाकी सारे छोटे छोटे आइलैंड है, एक होरमुज आइलैंड भी है. तो सबसे ज़्यादा फेरीज यहाँ से बंदर अब्बास से केशम के लिए जाती हैं, जो कि लगभग
हर आधे घंटे में एक फेरी जाती है। तो अभी मैं बस स्नैप टैक्सी लेके पहुंचता हूं उस पोर्ट तक, और पोर्ट से फिर जो भी मेरे को पहली फेरी मिलेगी वो फेरी लेके मैं जाऊंगा केशम में। केशम में मेरा कोई भी मुझे कोई होस्ट नहीं मिल पाया है, तो मेरे को हॉस्टल में रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा हॉस्टल का भी मज़ा लेते हैं। कुछ ज़्यादा अच्छा हॉस्टल नहीं है, बाकी देखते हैं, क्या पता माहौल अच्छा मिल जाए। बाकी ये छोटा सा बैग मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि 1 या 2 दिन ही मैं वहाँ पे रुकने वाला हूँ, तो ज़्यादा लगेज मैं लेके नहीं जाऊँगा। और मुझे जो नेक्स्ट सिटी जाना होगा उसको भी वो यहीं से ही बंदर अब्बास से ही मुझे बस लेनी होगी। नेक्स्ट सिटी कौन सी होगी ये अभी तो पता नहीं है, लेकिन लग जाएगा पता। टाइम के हिसाब से डिसाइड करेंगे, किसी अच्छी जगह ही लेके जाऊँगा आपको। टैक्सी का माय टैक्सी का बाय बाय। Thank you. Have a nice trip. आई विल सी यू टुमारो। See you tomorrow. बाय 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 बाय। तो बाहर स्नैप टैक्सी आ गई है और ये टैक्सी लेके मैं निकलता हूँ पोर्ट के लिए। Want to go to Kashmir? Yeah, he'll be exploring Kashmir Islands, having fun. Have a nice trip. Yeah, bye bye. सलाम। मर्सी, खुदा हाफिज़। कुछ इस टाइप का ये फेरी टर्मिनल है यहाँ पे। यहाँ लाके भाई ने उतार दिया है, कह रहा है यहाँ से आपको फेरी मिल जाएगी। अब देखता हूँ, ज़रा कैमरा अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगिंग ईरान में अलाउड नहीं है, थोड़ा चुप के करते हैं। तो ये इस टर्मिनल का नाम है शाहिद हगानी मैरीन पैसेंजर टर्मिनल। यहाँ से चलती हैं केशम के लिए और दूसरे आइलैंड्स के लिए फ़ेरी। मेरे को सुनने में ये आया था कि यहाँ से दुबई और भी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए फ़ेरीज़ जाती हैं। पता नहीं आजकल जाती हैं कि नहीं जाती, क्या प्रोसीजर होता है इनका, अभी तक तो कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि मेरा भी प्लान थोड़ा केशम लोकल ईरान के आइलैंड का ही जाने का ही है। तो अभी देखता हूँ क्या टाइमिंग है और टिकट विकट का क्या हिसाब किताब। ज़्यादा महंगी नहीं होती, जहाँ सुनने में आया मुझे कि सस्ती टिकट होती है। बाकी देखता हूँ, चेक करके बताता हूँ आपको। कुछ इस टाइप की टिकट मिली है एक्चुअली। जो इसका प्राइस आया है लगभग 7 लाख तोमान, जो इंडियन में लगभग हो गए लगभग 150 रुपये के आसपास, $2 के आसपास, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। तो इतना खर्चा है। लेकिन जो नॉर्मल टिकट आती है लोकल के लिए उसका रेट आधा है, उसका रेट लगभग इसका हाफ़ है, लगभग 3.5 लाख रियाल। और फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि फॉरेनर्स के अलग से टिकट है, पासपोर्ट भी मांगते हैं। लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 150 रुपये की टिकट है और मेरे ख्याल से 20 मिनट या फिर आधे घंटे की राइड है। यहाँ पे कुछ फेरीज़ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, इन्हीं में से कोई फेरी मुझे लेके जाएगी केशम आइलैंड। चलते हैं, देखते हैं ये सफ़र भी ईरान का। बार बार यहाँ पासपोर्ट चेक कर रहे हैं और ये वाली बोट जाएगी अपने को लेके। ठीक ठाक सी लग रही है बोट। मुझे लग रहा था कि पब्लिक फेरी बेकार सी होगी, लेकिन ये तो बढ़िया लग रही है। ओके तो गाइस, इस बोट में लगभग 45 मिनट का टाइम लगा बंदर अब्बास से, और मैं पहुंचा हूं पर्शियन गल्फ़ का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का सबसे बड़ा आइलैंड। इसका नाम है केशम आइलैंड। और अगर आप बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, तो स्ट्रेट किसको कहते हैं? पर्शियन गल्फ़ तो इस सी का नाम हो गया, लेकिन स्ट्रेट उसको कहते हैं जब दो लैंड बॉडीज़ के बीच में जो एक छोटा सा नैरो पैसेज होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ये है ईरान के जो आइलैंड हैं केशम आइलैंड और हॉर्मूज़ आइलैंड, उसके और ओमान के बीच में। तो एक छोटा सा नैरो पैसेज है
वो अगर आप देख पा रहे हो, आपको मैं मैप पे दिखाऊंगा, छोटा सा पैसेज है और इसकी दूरी लगभग बताई जाती है 50 मील के आसपास, मतलब 30 मील के आसपास और 50 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इतना छोटा सा नैरो पैसेज है और इसके उस तरफ ओमान सी है। और बाकी बात करें केशम आइलैंड की, तो ये इस पूरे इस रीजन का सबसे बड़ा आइलैंड है। ईरान का सबसे बड़ा आइलैंड है, पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये आइलैंड अगर आप एक ऊपर की इमेज से मैं आपको दिखाऊंगा, देखोगे तो ये एक एरो की शेप में बना हुआ है और काफ़ी सारी घूमने की जगह हैं। देखते हैं हम क्या क्या देख पाते हैं। अभी मैंने यहाँ से एक हॉस्टल बुक कराया हुआ है, उस हॉस्टल की तरफ जाता हूँ, सामान वामान रखता हूँ और फिर देखते हैं, घूमने भी निकलते हैं केशम आइलैंड में। जैसे बसेस के लिए होते हैं बस टर्मिनल, ट्रेन के लिए होता है ट्रेन टर्मिनल, तो ये फेरी के लिए फेरी टर्मिनल होते हैं। ये है केशम का फेरी टर्मिनल। पैसेंजर टर्मिनल अलग होता है, कार्गो टर्मिनल अलग होता है। मैं इस समय हूँ पैसेंजर टर्मिनल पे और ये एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं इस फेरी टर्मिनल से। तो गाइस बंदर अब्बास से फेरी लेके मैं पहुंचा था केशम आइलैंड के हार्बर पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ईरान में booking.com चलती नहीं है क्योंकि एक यूएस कंपनी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको यूज़ करनी पड़ती है hostelworld.com या फिर alibaba.ir ऐसी। तो मैंने भी अब केशम में मुझे कोई काउ सर्फिंग मिली नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे एक hostelworld के थ्रू एक हॉस्टल बुक करवाया। सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखा रहा था हॉस्टल की, और जिसमें से आज के लिए सिर्फ एक ही अवेलेबल था, तो मैंने उसको बुक करा दिया आज सुबह। लेकिन जब मैं केशम के वहाँ हार्बर पे पहुँचा तो मैंने अपने मैप पे लगाया कि चलो भैया हॉस्टल जाता हूँ, कितनी दूर है, तो 1 किलोमीटर ही दिखा रहा था। तो मैं कहा चलो पैदल 11 नंबर की गाड़ी पकड़ता हूँ पैदल वाली और उससे पहुँच जाता हूँ हॉस्टल। तो मैं थोड़ा सा वॉक करता हुआ हॉस्टल में पहुँचा और हॉस्टल के जब मैं मतलब लोकेशन पे पहुँचा तो वहाँ जाके मैंने देखा वहाँ पे कोई लोकेशन हॉस्टल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने व्हाट्सएप से उसका नंबर निकाला, एप्लीकेशन से उसका नंबर निकाला जो हॉस्टल वाले मालिक था या फिर जो भी ऑपरेशनल हेड था, तो उसको मैंने मैसेज किया कि मैं ऐसे ऐसे पहुँच गया हूँ, अब मुझे कहाँ पे आना है, मुझे लोकेशन नहीं मिल रही। तो उनका रिप्लाई आता है कि भाई जो जिस लोकेशन पे आप खड़े हुए हो तो वो लोकेशन ठीक नहीं है, हमने बोला हुआ है कि hostelworld में कि ये लोकेशन उन्होंने गलत डाली हुई है, हमारा हॉस्टल यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे हमारा हॉस्टल है ही नहीं है। तो मैं एक बार तो सोचने लगा कि भाई क्या करूँ, वापस जाऊँगा केशम में, लेकिन मैं बहुत सपने लेके आया हुआ था केशम के लिए, कितना सुंदर आइलैंड है, अच्छे से देखूँगा, मज़े करूँगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई कुछ करो कि हाँ मुझे तो रुकना ही है, मैंने बुकिंग भी कराई हुई है। तो उन्होंने कहा कि लास्ट 2 साल से हमारा हॉस्टल बंद ही पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट 2 साल से कोई केशम में कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं हमारे पास कोई बुकिंग ही नहीं आती है, आपने पता नहीं कैसे बुकिंग डाल दी, बट कह रहे कोई बात नहीं, आप आए हो, यू आर मोस्ट वेलकम इन ईरान। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे को बोला कि आप स्नैप टैक्सी ले लो, और उन्होंने मेरे को अपनी लोकेशन भेजी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको अपने घर पर रुकवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, आपको घर पर रूम दे दूँगा। तो उसके बाद मैं स्नैप टैक्सी लेके 3.5 लाख रियाल भर के, जो इंडियन में होते हैं पता नहीं कितने, मैं नीचे डाल दूँगा, मैं पहुँचा उनकी एक और सिटी में। सिटी क्या, वो एक छोटा सा टाउन है, क्योंकि ये जो पूरा आइलैंड है कई सारे टाउन्स में बटा हुआ है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, बताऊँगा आगे। तो मैं उनके जहाँ पे उनका ये घर है वहाँ पे पहुँचा, तो उसके बाद उन्होंने आके मुझे ये अपना घर के अंदर एक प्यारा सा रूम दे दिया मुझे। नॉर्मली वो टूरिस्ट को ये देते नहीं है, ये उन्होंने क्योंकि अपना हॉस्टल अलग से रखा हुआ है टूरिस्ट के लिए, लेकिन अभी हॉस्टल बंद था, तैयार नहीं था, तो उन्होंने वो इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी उनकी, उन्होंने मेरे को अपना रूम में पकड़ा दिया, कह रहे भाई हमारे रूम में रह दो। तो प्राइस इसका वही जो 5 यूरो मेरे को हॉस्टल पे दिखा रहा था, वही 5 यूरो मुझे अब यहाँ पे करना है। तो उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, तो भाई का नाम है मुस्तफ़ा, एक बहुत ही कमाल के बंदे हैं, इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को बिठाया और मेरे को सारी बातें बताई कि क्या कुछ जगहें हैं यहाँ पे घूमने की और कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी जगहें दूर दूर हैं, लेकिन उन्होंने लकीली मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लान बना लिया है, जिसको हम कल इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आज पहुँचते पहुँचते वैसे मुझे शाम हो गई थी। तो उस प्लान को हम कल इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत ही कमाल का प्लान है, बहुत ही कमाल की जगहें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी आने वाले वीडियोज़ में, और इस वीडियो में भी शायद, देखते हैं कहाँ ख़त्म होगा ये वीडियो। तो ये सब घूमने फिरने की बात हुई, और उसके बाद मैंने उनको बोला कि भाई भूख बहुत लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो उन्होंने कहा कि चलो आपको बाज़ार लेके चलता हूँ। तो अपनी बाइक पे मुझे पीछे बिठा के यहाँ का जो लोकल बाज़ार है वहाँ पे लेके गए। उन्होंने बोला कि आपको मैं एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत ही अच्छा शौरमा मिलता है। तो गाइस ये जो आइलैंड है ना केशम आइलैंड, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। लगभग अगर एक साइड से दूसरी साइड जाना है तो हमारे को लगभग 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करने पड़ सकते हैं। और जो मैं उतरा था वो मैं आया था लगभग केशम का जो मेन आइलैंड है वहाँ पे मैं उतरा, और एक हार्बर है वहाँ पे, वहाँ से फिर मैं उसके बाद अब एक स्नैप टैक्सी लेके दूसरी जगह पे पहुँचा। और अब मैं आया हूँ दरगाह हन नाम का, ये एक छोटा सा सेटलमेंट है
जहाँ पे मेरा होस्ट है, होम स्टे का हो या फिर हॉस्टल का हो, और ये उसका सिटी सेंटर है। भाई मेरे होस्ट ने बताया कि यहाँ पे चिकन शॉर्मा बहुत बढ़िया होता है, तो वही खाने आया हूँ। भाई देखो क्या मस्त तरीके से बना रहा है। यहाँ पे जो बंदे थे जो मेरे को जिन्होंने पैसे काटे और जो ये भाई बना रहा था, तो इनको पता लगा कि मैं इंडिया से हूँ, बहुत खुश हो गए। बार बार पूछ रहे हिंदी हिंदी, इंडियंस को बोलते हैं यहाँ पे हिंदी, उनको देख के बहुत खुश होते हैं। मेरे होस्ट भी बता रहे थे कि इन लोगों का बहुत जो यहाँ के आइलैंड के जो निवासी हैं, इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है इंडियंस के साथ। थैंक यू मर से। ये आ गया शौरमा, और ये साथ में नकली कोका। काफ़ी लजीज शौरमा था, इसलिए एक खा भी लिया और एक साथ में मैंने पैक करवा लिया। और अभी जो मेरे मुस्तफ़ा भाई हैं, जो हॉस्टल वाले या फिर होम स्टे वाले भाई हैं, उनको फिर से बुलाया मैंने। वो कह रहे मैं लेने आ जाता हूँ, तो वो लेने आ रहे हैं दोबारा से मुझे। उनकी बाइक पे बैठ के वापस पहुँचता हूँ हॉस्टल। तो गाइस, जब हम बात करते हैं केशम की, केशम आइलैंड की, या फिर इस पूरे रीजन की, तो अगर आप घूमने की जगह सर्च करोगे ना कि सबसे बढ़िया जगह घूमने की कौन सी है, तो सबसे पहले आपके पास नाम निकल के आएगा। चाहे गूगल कर लो, चाहे ट्रिप एडवाइज़र कर लो, सबसे पहले आपके पास नाम निकल के आएगा स्टार्स वैली। जी हाँ, ये एक बहुत ही पॉपुलर जगह है इस पूरे रीजन की, इसको बोलते हैं स्टार्स वैली। इसके पीछे काफ़ी बड़ी कहानियाँ हैं। कहानी में सुनाने के लिए डायरेक्ट यहीं पे पहुंचा हूँ, स्टार्स वैली। ये पीछे की तरफ मेरे पूरी ये जो वैली है, इसको कहलाते हैं स्टार्स वैली। और मैं कहता हूँ यहीं पहुँच के आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा। ऐसे आपको पीछे से बताता रहूँगा, मज़ा नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो स्टार्स वैली है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैली है इस ईरान की। और माना ये जाता है, जो यहाँ के लोकल्स का मानना है, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे पहले एक स्टार गिरा था, और उसके बाद ये सब इस टाइप की वैली फॉर्म हुई है। यहाँ पे बड़ा कुछ सितारा गिरा था, वो ये मानते हैं। लेकिन उसके बाद जब साइंटिफिक रिसर्च हुई, तो ये सामने निकल के आया कि हाँ, कुछ ऐसी कोई कॉस्मिक एक्टिविटी हुई है यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स पहले। लेकिन उसके बाद जो ये पीछे आप पूरी शेप्स दिखाई दे रही हैं, पिछले इस टाइप की कुछ अलग अलग टाइप की शेप्स बनी हुई हैं, ये बनी हैं जो कॉस्मिक जो इरोजन होती है सॉइल और उसकी पानी के कारण बारिश आती है, या फिर हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से हवा जो होती है वो पहाड़ियों को काटती रहती है। तो उसकी वजह से जब काफ़ी मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स से ऐसे चलती रही, उसके बाद जाके ये कुछ ऐसी पहाड़ियाँ बन के आई हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत बहुत कम जगह देखने को मिलती हैं। अगर हम हिस्ट्री की माने, तो इस टाइप की पहाड़ियाँ सिर्फ 2 ही जगह पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं। एक तो हो गया ईरान में है स्टार्स वैली, और दूसरा हो गया हमारा एरिज़ोना USA में। अब एरिज़ोना तो पता नहीं कब जाएंगे, तो मैं कहा आपको ईरान की ये स्टार वैली ज़रूर दिखानी थी। एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा केशम आइलैंड और ईरान आने का, कि मुझे ये स्टार्स वैली देखनी थी। हज़ारों करोड़ों सालों पहले बनी ये वैली, इसको कई लोग ना मार्स वैली भी कह देते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी जो आपको टेरेन दिखेगा, जो मार्स हमारा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, उसके जैसा दिखेगा। लेकिन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है नहीं है। मार्स से इसका कुछ लेना देना है नहीं है। होगा तो ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च है नहीं जो ये कहता है कि इसका मार्स से कुछ लेना देना है। लेकिन जो इसका नाम है स्टार वैली, वो फिर भी थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो गया, क्योंकि पहले जो साइंटिफिक यहाँ पे पूरी हुई जांच पड़ताल हुई, उसमें ये सामने आया था कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से पहाड़ बने हैं यहाँ पे, ऐसे हुए हैं। लेकिन उसके बाद चलो वो चीज़ ठीक होगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे ना रात को जब यहाँ पे लोग यहाँ से स्टार गेजिंग जो होती है वो बहुत ही कमाल की होती है, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पे आना पसंद करते हैं रात के टाइम, ताकि वो देख सकें यहाँ पे जो स्टार्स होते हैं। लेकिन रात को आना भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो एक तो यहाँ पे बाहर एंट्री टिकट होती है, वो बंद कर देते हैं कि शाम के बाद यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोकल जो गांव वाले हैं, जो लोकल्स हैं, वो ये मानते हैं कि यहाँ पे कुछ हॉन्टेड प्लेस है, कि यहाँ पे भूत होते हैं। मे भी उनका मानना है,
इसलिए क्योंकि पुरानी कहानियाँ कुछ चली हुई आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी शहर से बाहर निकल के है, पूरे जो लोकल कम्युनिटी का जहाँ लोग रहते हैं उससे बाहर निकल के है ये एरिया, और तो उस वजह से लोग डरते होंगे। लेकिन मेरे को तो ये लगता है, और मैंने इतना पढ़ा है, ये है कि क्योंकि ये देखो यहाँ पे खुली ऐसे करके ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, तो इनके बीच में जब हवा चलती होगी तो उनसे आवाज़ें होती हैं, और उन्हीं आवाज़ों से लोकल्स ने कई बार ये डर बना लिया कि भाई यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं। तो जो कुछ बातें हैं ये तो मैंने कुछ पढ़ा है, वही आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना के बोल रहा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि भाई आप ये कैसे बोल रहे हो, वो कैसे बोल रहे हो। तो जितना मैं फैक्ट्स में पढ़ता हूँ उतना मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब वो सही है नहीं है वो तो भाई आप खुद भी चेक कर सकते हो। बाकी ये थी कहानी केशम आइलैंड की। मैं पहुंचा था यहाँ पे, और आज अभी सुबह का टाइम हुआ है, मैं घूमने निकला हूँ। तो अभी केशम आइलैंड के आसपास यूँ जो स्टार्स वैली है, ये केशम आइलैंड के अंदर ही आती है, और जहाँ मैं रुका हुआ था जो जगह थी दारागन उसके आसपास ही थी। तो मैंने आपको ये वाली जो स्टार्स वैली थी ये मैंने आपको इस जो केशम आइलैंड में पहुँचा था उस वीडियो के साथ दिखा दी। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मैं अभी और आइलैंड्स जाने वाला हूँ। कैसे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ वो आपको अगले वीडियो में पता लगेगा। वो भी बहुत कमाल की जगह है, कुछ मैं डॉल्फिन्स देखने वाला हूँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मिस नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी 3-4 दिन में आपको नया भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ईरान के आइलैंड दिखाए और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट में लिस्टेड आपको ये स्टार्स वैली दिखाई। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि लोगों को देखने को मिले कि ईरान में इतनी खूबसूरत जगहें भी हैं। ईरान खाली एक डेंजरस जगह नहीं है, वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।